ذرا یاد کیجئے جاندار زمین کے کون کون سے کروں میں پائے جاتے ہیں؟ جاندار زمین کے فضائی کرے، آبی کرے اور ہجری کرے میں پائے جاتے ہیں۔ ان تینوں کروں کو ملا کر ہم حیاتی کرہ کہتے ہیں۔ زمین پر مختلف مقامات کے جغرافیائی حالات میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ ان مختلف حالات میں بھی جاندار زندہ رہتے ہیں۔ ہم جس جگہ رہتے ہیں وہاں کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں۔ جانداروں میں ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، اس لیے مختلف قسم کے جاندار باقی ہیں۔ نباتات میں تنوع۔ ہمارے اطراف کئی مقامات پر الگ الگ قسم کی نباتات پائی جاتی ہیں۔ کچھ نباتات گھاس کی طرح چھوٹی تو کچھ اونچی ڈیرے دار ہوتی ہے۔ کچھ نباتات پانی کے اندر تو کچھ سطح پر تیرتی نظر آتی ہیں۔ ریگستان میں بھی ہمیں کچھ نباتات نظر آتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایک ہی قسم کی نباتات میں بھی ہمیں تنوع نظر آتا ہے، جیسے گلاب کی مختلف قسمیں، مختلف ذائقوں کے آم، چاول یا گیہوں کی مختلف قسمیں۔ کچھ نباتات میں تو جڑ، تنا یا پتے نہیں پائے جاتے، وہ عام نباتات سے مختلف ہوتی ہیں۔ آئیے ہم نباتات میں تنوع کے متعلق معلومات حاصل کریں۔ جو نباتات سورج کی روشنی میں اپنی غذا خود تیار کرتی ہیں انہیں خود کفیل نباتات کہتے ہیں، مثلا جاسندی، انار، سادہ بہار وغیرہ۔ کچھ نباتات جیسے پھپھوند، تاک، امربیل اپنی غذا دوسرے پودوں سے حاصل کرتی ہے، اس لیے انہیں غیر کفیل نباتات کہتے ہیں۔ سراہیہ پودا جیسی نباتات کرم خور ہوتی ہیں۔ نباتات کی ساخت۔ عام طور پر نباتات کے دو حصے ہوتے ہیں۔ نباتات کے اوپر کا حصہ تنا، زمین کے اندر والا حصہ جڑ۔ نباتات کے اہم حصے جڑ، تنا، پتے، پھل اور پھول ہیں۔ افزائش نسل کے لیے ان میں پھول آتے ہیں جو بعد میں پھل میں تبدیل ہوتے ہیں۔ ان پھلوں سے بیج حاصل ہوتے ہیں، ان بیجوں سے نیا پودا تیار ہوتا ہے۔ جڑ، یہ مٹی کو تھامے رکھتی ہے، پودے کو سہارا دینا، زمین سے پانی اور غذائی مادے جذب کر کے اوپر پہنچانا جڑ کے افعال ہیں۔ گاجر مولی میں جڑ غذا کا ذخیرہ کرتی ہے۔ جڑ کی دو قسمیں ہیں، اصل جڑ اور ریشہ دار جڑ۔ تنا، نباتات کی اونچائی اور ساخت کا انحصار تنے پر ہوتا ہے۔ تنا غذا کی تیاری، غذا کو پودے کے مختلف حصوں تک پہنچانا، غذا کا ذخیرہ کرنا، اور کچھ نباتات میں یہ افزائش نسل کا عمل انجام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ نباتات کے دیگر حصوں کو سہارا دیتا ہے۔ پتے، پتے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، غذا کی تیاری میں یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پتے دو قسم کے ہوتے ہیں، مفرد اور مرکب۔ پھل، پھل مختلف ساخت کے ہوتے ہیں۔ پھلوں میں ایک یا ایک سے زیادہ بیج ہوتے ہیں۔ سیم، بٹانے، مٹر کی پھلیاں پھل ہی ہیں۔ پھول، یہ نباتات کا خوبصورت حصہ ہے۔ وہ لمبے یا چھوٹے ڈنٹھل کے ذریعے تنے سے جڑا ہوتا ہے۔ پھول کا مخصوص رنگ اور ساخت ہوتی ہے، یہ افزائش نسل کا اہم وسیلہ ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم جماعت ششم سبق نمبر 3 جانداروں میں تنوع اور درجہ بندی، اس سبق کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ نباتات کی جماعت بندی کی ضرورت۔ مختلف نباتات کی تعداد کے بارے میں غور کیا جائے تو آج تک لاکھوں نباتات کی معلومات جمع ہو چکی ہے۔ نباتات کے اس تنوع کا مطالعے میں سہولت پیدا کرنے کی خاطر ان کی ساخت، مختلف اعضاء اور دیگر خصوصیات مثلاً یکسانیت اور فرق کی بنا پر جماعت بندی کی جاتی ہے۔
कैरोलिस लीनियस नामी साइंसदान ने नबातात की सबसे पहली साइंसी जमात बंदी की। उन्होंने इब्तिदा में जमात बंदी के जो तरीके इख्तियार किए थे उन पर आज भी अमल किया जाता है। नबातात की दर्जाबंदी। अतराफ व इकनाफ की नबातात की साख्त ऊंचाई में फ़र्क हम फौरी तौर पर समझ सकते हैं। इस बुनियाद पर हम नबातात की जमात बंदी आसानी से कर सकते हैं। दरख्त कुछ नबातात लंबी होती हैं, उनके तने सख्त और मजबूत होते हैं। उनमें ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर शाखें निकलती हैं, उनको कई साल तक फूल और फल लगते हैं। ऐसे नबातात को दरख्त कहते हैं। दरख्त ऊंचे और जसामत में बड़े होते हैं, कसीर साला होते हैं। झाड़ियाँ कुछ नबातात ज़मीन से लगकर नशोनुमा पाती हैं, ज़मीन के करीब ही उनमें शाखें निकलती हैं। दरख्त की बनिस्बत उनकी ऊंचाई और जसामत छोटी होती है, लेकिन तना मोटा और सख्त होता है। कनेर और जारसुंदी, घानेरी, कोरांटी, गुलाब भी झाड़ियाँ हैं। झाड़ियाँ 2 से 3 मीटर ऊंचाई तक बढ़ती हैं। बेल कुछ बेलें नशोनुमा पाने के लिए सहारे की मदद लेती हैं, कुछ बेलें ज़मीन पर ही फैल जाती हैं। मनी प्लांट जैसे बेलों में तनाव होते हैं। ककड़ी की बेल को स्प्रिंग जैसे बेल डोरे होते हैं। क्या आपने देखे हैं? उनका क्या इस्तेमाल होता होगा? बेल के तने को हाथ लगाकर देखिए, क्या महसूस होता है? बेल का तना बेहद नरम, लचकदार और हरा होता है, इसलिए सहारे की मदद से उसकी नशोनुमा तेजी से होती है। यकसाला, 2 साला और कसीर साला नबातात। जवार, सूरजमुखी जैसी नबातात का दौर हयात 1 साल में पूरा होता है, उन्हें यकसाला नबातात कहते हैं। गाजर, चकंदर जैसे नबातात का दौर हयात पूरा होने के लिए 2 साल दरकार होते हैं, उन्हें 2 साला नबातात कहते हैं। जासुंदी, कन्हेर जैसी झाड़ियाँ और आम, गुलमोहर जैसे दरख्त कई साल जिंदा रहते हैं और उन्हें फूल और फल आते हैं, उन्हें कसीर साला नबातात कहते हैं। दौरे हयात के अरसे के लिहाज से नबातात को यकसाला, 2 साला और कसीर साला में तकसीम किया गया है। ज़ोहरावी और गैर ज़ोहरावी नबातात। जिन नबातात में फूल खिलते हैं उन्हें ज़ोहरावी फूलदार नबातात कहते हैं। जिनमें फूल नहीं खुलते उन्हें गैर ज़ोहरावी या गैर फूलदार नबातात कहते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा फूल इंडोनेशिया में पाया जाता है? राफ्लेशिया और नोल्डी नामी दरख्त के फूल का कुत्र तकरीबन 1 मीटर होता है। उसके बरखिलाफ दुनिया में सबसे छोटा फूल वुल्फिया नामी पौधे का होता है। उसका कुत्र महज 0.5 मिलीमीटर होता है। नबातात का मस्कन। हमारे अतराफ व इकनाफ में मुख्तलिफ जगहों पर नबातात में नशोनुमा पाती हुई नज़र आती हैं। नबातात की जमात बंदी उनके मस्कन के लिहाज से की जाती है। ज़मीन, पानी, दलदली ज़मीन, रेगिस्तान, कोई बड़ा दरख्त वगैरह नबातात के मस्कन हैं। आइए गौर करें, आबी नबातात पानी पर क्यों तैरते हैं? नागफनी का तना गूदेदार क्यों होता है? नबातात की जमात बंदी कितने तरीकों से की जाती है? हैवानात में तनु और दर्जाबंदी। माहौल में अपनी बका के लिए मुख्तलिफ हैवानात ने मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार की हैं। नबातात की तरह हैवानात के जिस्म की साख्त में भी तनु पाया जाता है। आँखों से नज़र न आने वाला अमीबा, जसामत में बड़ा हाथी, छोटे घोंगे, पानी में तैरने वाली मछली, आसमान में बुलंदी पर उड़ने वाली चील, फूलों पर मंडलाने वाली तितलियाँ और दूसरे कीड़े, दीवार पर रेंगने वाली छिपकली, ये तमाम हैवानात हैं। इनमें हर एक की खुसूसियात मुख्तलिफ हैं।
हैवानात में सर, गर्दन, धड़, दुम और हरकत करने के लिए हाथ और पैर जैसे आज़ा पाए जाते हैं। जिस्म के मुख्तलिफ अफ़आल अंजाम देने के लिए मुख्तलिफ उज़वी निज़ाम भी होते हैं। इस ताल्लुक से भी हैवानात में तनू पाया जाता है। बताइए तो भला, सांप गिरगिट, शेर मछली, चील मुर्गी, केकड़ा मक्खी, केचुआ मगरमच्छ, टिड्डा, इन हैवानात के जिस्म की बनावट में क्या फ़र्क है? हैवानात के तग़ज़िये में भी तनू पाया जाता है। हैवानात ग़िज़ा के लिए दूसरों पर इन्हिसार करते हैं। उन्हें जहाँ ग़िज़ा मिलती है वहाँ बस जाते हैं। हैवानात के ग़िज़ा हासिल करने और उन्हें खाने के तरीके में भी मुख्तलिफ हैं। इसी बिना पर उनके जिस्म की साख्त भी मुख्तलिफ होती है। अमल कीजिए। अपने अतराफ में पाए जाने वाले हैवानात का मुशाहिदा कीजिए, उनकी फहरिस्त बनाइए। हासिल मालूमात की बिना पर ज़ैल में दी गई जदूल मुकम्मल करके जमाअत में गुफ्तगू कीजिए। अमल कीजिए। गड्ढे के पानी का एक कतरा स्लाइड पर लीजिए। खूर्दबीन के ज़रिए उसका मुशाहिदा कीजिए, क्या नज़र आता है? गड्ढे के पानी के कतरे को खूर्दबीन के ज़रिए देखने पर उसमें अनगिनत खूर्दबीनी जानदार हरकत करते हुए नज़र आते हैं। मसलसल हरकत करने वाला अमीबा नज़र आएगा। अमीबा की तरह पैरामेशियम भी यह खलवी हैवान है। घोड़ा, रीछ, कछुआ ऐसे कई दूसरे हैवानात कसीर खलवी हैं। बताइए तो भला, हमारी पीठ के दरमियान हड्डियों का जो सिलसिला है उसे क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी वाले हैवानात को फिक्री हैवानात और जिनमें रीढ़ की हड्डी ना हो उनको गैर फिक्री हैवानात, इस तरह दो ग्रोहों में तकसीम करते हैं। सांप, इंसान, परिंदे, मछली, कंगारू फिक्री हैवानात हैं। घूंगा, झिंगर, कछुआ इन हैवानात में रीढ़ की हड्डी ना होने की वजह से उन्हें गैर फिक्री हैवानात कहते हैं। अंडे देने वाले, बच्चे देने वाले हैवानात कौन कौन से हैं? आपने पढ़ा है कि अपने जैसे दूसरे जानदार को जन्म देना अफजाइश नस्ल कहलाता है। मुर्गी अंडे देती है, उन्हें सहती है, कुछ दिन बाद उनमें से बच्चे निकलते हैं। गाय बछड़े को जन्म देती है। बछड़े की नशोनुमा गाय के जिस्म ही में होती है। अफजाइश नस्ल के तरीके के लिहाज से हैवानात की दो किस्में हैं, बैज़ा और बच्चा। अंडे देने वाले हैवानात को बच्चा कहते हैं और बच्चा देने वाले हैवानात को बच्चा हैवानात कहते हैं। अमल कीजिए। घोड़ा, रीछ, कछुआ, मगरमच्छ, मछली, हरन, मेंढक ये हैवानात कहाँ रहते हैं? हैवानात के मस्कन के लिहाज से उन्हें बर्री और आबी ऐसे दो ग्रोहों में तकसीम करते हैं, लेकिन मेंढक, स्लैमेंडर, टोड्स ज़मीन और पानी दोनों मकामात पर रहते हैं, इसलिए उन्हें जल थलिये कहते हैं। चील, उकाब, कौवा, तितली, शहद की मक्खी मुख्तलिफ जगहों पर रहने के बावजूद हवा में परवास करते हैं, उन्हें फ़िज़ाई हैवानात कहते हैं। हमने क्या सीखा? नबातात की दर्जाबंदी तने की साख्त, ऊंचाई, दौरे हयात, अरसा हयात और मस्कन के लिहाज से की जाती है। हैवानात की दर्जाबंदी खलियात की साख्त, रीढ़ की हड्डी, अफजाइश नस्ल के तरीके और मस्कन के लिहाज से की जाती है।